बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं अतीकुर्रहमान आपका वीटीसी टीचर। आप तमाम का मैं एमसीएम वीटीसी ऑनलाइन वीडियो सेशन में खैर मकदम करता हूँ। और बच्चों, आज के सेशन में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इल्म रियाज़ी पर्चा 1, जिसका ताल्लुक़ जो है तो प्री अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप से हैं। इसके ताल्लुक़ से हम यहाँ पर आज के सेशन में बात कर रहे हैं और इसमें हम जो कसर में जो ज़िमनी जुज़ है हमारा, वो आज है 3.4 में। हम यहाँ पर अशरी कसरें जो है इसकी जमा तफरीक यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। सो इन दिस सेशन स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग अबाउट डेसिमल फ्रैक्शन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. So in this session of standard 5th paper 1 pre-upper primary scholarship examination session, students, today we are doing here addition and subtraction, and here are some examples. So the example number 1 is on your screen. So the addition of 7.09 with 54.93. So here are the options for it: 125.02, 62.8383, then 62.02, and the fourth one is 125.83. So these are the option. We are supposed to mark out here the right option, but before this we are supposed to do here the addition of these number. But we are supposed to do one thing here that is very compulsory. When we add a decimal, we write numbers one below the other such that position of decimal point should be exactly one below the other. हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों कि जब कभी हम अशरी कसरों की जमा तफरीक करते हैं तो उस वक्त आशारिया की अलामत एक के नीचे एक आना ज़रूरी है। सही आदात की जमा करते वक्त आदात के हिस्सों के मकामात का ध्यान रखते हुए एक के नीचे एक हम उसे लिखते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं 0.7.09. So to make of 5 we write 0 before 7 because you are looking that there are 2-digit number, so addition is here. So now look at the additions position of two number. So we are supposed to give the right position to this decimal point first. That is so important in this. So यहाँ पर अब इसकी जमा करेंगे हम। आपने देखा बच्चों यहाँ पर कि आशारे की अलामत के नीचे आशारे की अलामत हमें लाना ज़रूरी है, ठीक है। अब इसका एडिशन हम करेंगे। यहाँ पर 9 + 3 12, 1 will be carry over, 1 + 9 10, 10 1 will be carry over. So 1 + 7 8, 8 + 4 12, 1 will be carry over. So 1 + 6, 1 + 5 will be 6. So 62.02 is our answer. So you are looking that this answer is in alternative number 3. So we are supposed to make a dark circle on alternative number 3. Okay, so it is a correct answer here. So like this we are supposed to do the addition and subtraction of any decimal fraction here. So now look at the addition of 47.93 with 154.4. So here are the alternatives, and now we are supposed to mark out on the correct alternative. But before doing that we are supposed to do the addition of 47.93 with 154.
53.4. So place value and decimal point should be matched with each other. ठीक है, ये हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों जमा करते वक्त कि हमें जो है तो हिस्से का मकाम और अलामत अशारिया ये जो है तो एक के नीचे एक आए इस तरतीब में हमें उसे लिखना होता है। तो 153.4 को हमने यहाँ पर क्या किया 154.40 किया है बिकॉज द another number is 47.93 is there. So you will see here that doing the addition with this we are supposed to देख सकते हैं आप यहाँ पर कैसे हमने आशारिया की अलामत के नीचे आशारिया की अलामत को बराबर से यहाँ लिखा है। तो इसमें यहाँ पर अब आसानी के साथ हम इसका एडिशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 का 3 मिला हमें यहाँ पर 4 + 9 13 1 will be carry over. So 1 + 3 4 4 + 7 11. So 11 1 will be carry over here. So 1 + 5 6 6 + 4 10 1 will be carry over here. So 1 + 1 2. So like this we can do the addition. So now look at the option which alternative having the right answer here. So you're observing these 4 alternatives here. So 201.33 will be the first option. So we are supposed to mark a dark circle on this option, this alternative number 1 like this. And now look at the another example 97.8 meter with addition 1358.97 meter. So here are the alternatives. And now look at the addition. So बच्चों अगर आपको ज़ुबानी तौर पर अगर इसकी जमा आती है तो वेल एंड गुड है, वरना आपने देखा यहाँ पर कि अब यहाँ आपने देखा कि कितने डिजिट है 4 डिजिट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 4 डिजिट तक के से बनाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा एडिशन जब होगा तो हमें प्रॉपर जो है तो नंबर के नीचे नंबर मिलने चाहिए और ये जो अलामत है हमारी आशारिया की अलामत वो बराबर अलामत के नीचे अलामत हमें मिलना चाहिए। अब हम एडिशन आसानी से कर सकते हैं इसका 7 का 7 मिलेगा 8 + 9 विल बी 17। सो 17 का यहाँ पर 1 हमें कैरी ओवर करना पड़ेगा 7 + 1 8 8 + 8 16 1 will be carry over. So 9 + 1 10 10 + 5 15 1 will be carry over. So 1 + 3 4 और 1 का 1 यहाँ पर रहेगा। So 1456.77 is our answer. So look at here the alternatives. So you're looking that this alternative is a correct answer for this one. So we are supposed to make a dark circle on second circle. And now look at the question here. यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों सवाल दिया हुआ है। क्या दिया है सवाल के एक पेंसिल की कीमत 3.5 रुपये और पेन की कीमत 4.5 रुपये है, तो इनकी मजमूई कीमत क्या होगी वो हमें बताना है। ठीक है, तो एक पेंसिल की कीमत 3.5 रुपये है और पेन की कीमत 4.5 रुपये है। तो आप देख सकते हैं इसकी आसानी से 3.5 और 4.5 की अगर ज़ुबानी तौर पर आपको कहा जाए तो आप आसानी से कहेंगे कि भाई इसकी जमा अगर हम करेंगे तो 8 रुपये हो जाएगी, है ना। 3.5 और 4.5 की अगर हम यहाँ पर कीमत अगर हम देखते हैं तो वो हमें कितनी मिल जाएगी, तो वो हमें 8 रुपये मिल जाएगी, है ना। ये सब अगर आसानी से ज़ुबानी तौर पर अगर करते हैं तो इस तरह से हमें आंसर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस जो दिए हुए हैं वो किस तरह के हैं, तो यहाँ पर हम ऑप्शंस देख रहे हैं तो 7.50 4.80
then 700, then 8.00. ठीक है. The cost of one pencil and one pen is 3.5 rupees and 4.5 rupees respectively. Then find the total cost here. तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पर इससे हमें 3.5 रुपीज़ इज इक्वल टू, अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो दैट विल बी 3.5 रुपीज़ एंड 3 रुपीज़ विल बी 3.50 पैसे और 3.50 rupees. Okay, and now the 4.5 rupees will be 4 rupees and half rupee, so that will be 4.50 or 4.50 paise. Okay, so the addition is here 3.50 with 4.50, and that will be 5. अब यहाँ पर अगर हम एडिशन करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ भी ज़ीरो मिलेगा हमें. ठीक है. सो आप देखेंगे यहाँ पर कि 1 विल बी कैरी ओवर हेयर, और इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर 8 हमें मिलेगा. ठीक है. सो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें यहाँ पर जो है तो 3.5 रुपये यानी 3 रुपये और आधा रुपया नीज 4.5 रुपये, यानी कि कितना हुआ, 4 रुपये और आधा रुपया हुआ, यानी 3 रुपये और 4 रुपये मिलकर जो है तो 7 रुपये हुए, और 2 आधे मिलकर 1 रुपया हुआ यहाँ पर. तो इस तरह से आप देखेंगे कि 7 + 1 यानी कि 8 हुआ. ठीक है. सो यहाँ पर हम देखेंगे इस तरह से कि जब हमने उसे प्रॉपर जो है तो आशारिया की सूरत में लिखकर जमा किया तो हमें यहाँ पर जवाब क्या मिला, 8.00 मिला. तो इस तरह से आप देखेंगे कि अल्टरनेटिव्स में कि 8.00 कहाँ पर है, तो दैट इज़ इन अल्टरनेटिव नंबर 4. सो वी आर सपोज टू मेक अ डार्क सर्कल ऑन अल्टरनेटिव नंबर 4 लाइक दिस. ठीक है, इस तरह से. तो ये हम इस तरह से ये सवालात हल कर सकते हैं. ठीक है. अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं. यहाँ पर देख सकते हैं आप, सवाल दिया हुआ है कि समीर ने जो है तो 7.2 मीटर पैंट का कपड़ा और 2.15 मीटर शर्ट का कपड़ा ख़रीदा, तो बताइए इसने कुल कितना कपड़ा ख़रीदा है. ठीक है. समीर बॉट 3.72 मीटर क्लॉथ for trouser and 2.515 meter cloth for shirt. Then he bought total how many meter cloth? Okay, so alternative number 1 is 5 meter 97 centimeter, second one is 59 meter and 7 centimeter, third one is 5 meter 87 centimeter, and fourth one is 5 meter and 15 centimeter. So यहाँ पर बच्चों इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर जो है तो थोड़ा सा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है. अब सेंटीमीटर, मीटर और सेंटीमीटर की यहाँ पर बात है. ठीक है. तो इसे ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, जब एडिशन करेंगे तो मीटर अलग और सेंटीमीटर को हमें यहाँ पर ध्यान देना है. तो मीटर को हम यहाँ पर जो है तो आशारे के अलामत से पहले लिखेंगे और सेंटीमीटर को आशारे की अलामत के बाद लिखेंगे इस तरह से. तो 7.2 3.72 प्लस 2.15. ठीक है. तो इस तरह से हमने यहाँ पर सेंटीमीटर को जो है तो आशारे की अलामत के बाद लिखा इस तरह से. अब इसका एडिशन हम यहाँ पर कर लेते हैं. So 2 + 5 7 1 7 1 7 + 1 8. ओके. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 7 हो गया, ये 8 हो गया. यहाँ पर ये अशारे की अलामत हमने लगा दी यहाँ पर. So 3 + 2 will be 5 here. तो ये हमारा यहाँ पर इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा 5.87 ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पर. ठीक है. सो आप देखेंगे यहाँ पर कि alternative number 3 having the right answer here, 5 meter and 87
centimeter. So we are supposed to make a dark circle on this alternative like this. ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा जवाब यहाँ पर इस तरह से हमें मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद का क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो किस तरह है देख लेते हैं हम। यहाँ पर जमा करना है हमें 10.5 मीटर और 3.25 मीटर की। ठीक है, इसकी जमा करना है हमें यहाँ पर। तो द एडिशन ऑफ 10.5 मीटर एंड 2.75 मीटर। ठीक है, 10.5 मीटर और 3.25 मीटर का यहाँ पर हमें जमा करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अल्टरनेटिव्स जो दिए हुए हैं वो किस तरह से है यहाँ पर। तो ये अल्टरनेटिव्स है जो हमें यहाँ पर दिए हैं। अब यहाँ पर हमें 10.5 मीटर देखना है कि 10.5 मीटर यानी कितना। तो सबसे पहले हम देखते हैं 10.5 मीटर यानी 10.5 मीटर। तो 10.5 मीटर इज इक्वल टू 10 integers 1/2, that will be 10.50। ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से अब हम यहाँ पर जो है तो 3.25 मीटर देखते हैं, 2 and 3/4 मीटर। सो 2 integers 3/4 is equal to 2.75। ठीक है, इस तरह से। So the addition of 10.50 meter with a 2.75 meter will be 13.25 मीटर। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों के अब यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 13.25 मीटर मिल गया है। ठीक है, सो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पर 13.25 मीटर को हमने यहाँ पर जो है तो 13 इंटीजर्स 1/4 इसे इस तरह से लिखा। सो दैट विल बी 13 मीटर्स एंड 1/4। ठीक है, ये कितना हो गया, 13.25 मीटर हो गया इस तरह से। ठीक है, 13.25 मीटर मीन्स 13.25 मीटर। सो 13 and 1/4 meter. This answer is in alternative number 3. So we are supposed to make a dark circle on this option. Okay, like this. Now look at the next question and that is on your screen. आयशा ने दुकान से 16.5 रुपए का बिस्किट खरीदा है। 16.5। ठीक है, 16.5 रुपए का उसने जो है तो बिस्किट खरीदे हैं। 42.5 रुपए का दूध और 29.5 रुपए के बड़ खरीदे हैं। तो दुकानदार को 100 रुपए का नोट दिया तो दुकानदार आयशा को कितनी रकम वापस करेगा। ठीक है, आयशा बॉट बिस्किट फॉर द $16.5 milk for 42.5 and butter for 29.5. She gave 100 rupees note to shopkeeper. How much money she will get back from him? So here are some alternatives: 11.00, 11.50, 89.00 and 88.50. So these are the alternatives. Okay, now look at the total. We are supposed to do the addition of टोटल परचेजिंग हेयर। हमें यहाँ पर आयशा ने जो दुकान से जो चीज़ें ख़रीदी है उससे हमें यहाँ पर देखना है, उसका एडिशन हमें करना है कि बिस्किट कितना था। तो दैट इज़
16.50, मिल्क कितने का था, दैट इज़ 42.50, एंड बटर कितने का था, दैट इज़ 29.50। ठीक है, साढ़े का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हमने इससे पहले देखा था, है ना, आधा होता है, यानी कि 50 पैसे, है ना, जैसे हम यहाँ पर जैसे 2.5 देख रहे हैं, 3.5 रुपए देख रहे हैं, तो दैट इज़ 50 पैसे फॉर दैट वन। सो 16, यहाँ पर 16.5 का कितना हो गया, 16.50, 42.5 का कितना हो गया, 42.50, और 29 29.5 का कितना हो गया, तो डेट इज 29.50। and now do the addition for this one. So the addition of these biscuit, milk and butter is 88.50. And now how much money she gave, so 100 rupees note, so the remaining amount is, we are supposed to do the subtraction. So amount expend is 85.50. So you will see the answer for this one 88, actually that is 88.50, the amount is expended here. So the answer will be 11.50. ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 88.5 रुपये जो है तो खर्च हुए हैं, यानी कि 11.5 रुपये जो है तो दुकानदार उसको वापस करेगा। ओके, शॉपकीपर विल रिटर्न हर 11.50 rupees. So you're looking that this answer is in alternative number 2. So we are supposed to make a dark circle on this answer. ठीक है, तो बच्चों आप भी दुकान पर जाते हैं, अलग अलग चीज़ें ख़रीदते हैं, तो इस तरह का जवाब आप आसानी से उस जवाब तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको ये सारा कैलकुलेशन नहीं भी करना है तो ज़ुबानी तौर पर आप इस सवाल को हल कर सकते हैं, है ना। नॉर्मली ऐसी चीज़ें हैं इस एग्ज़ाम्पल में जो कि आप दुकान से ख़रीदते हैं ये सामान, और दुकान से जब आप ख़रीदते हैं तो आपको इस तरह की सारी जो है तो जो एग्ज़ाम्पल्स है उसका एडिशन आपको आता है या आना चाहिए, कि जब दुकानदार को आपने पैसा दिया है उसने प्रॉपर आपको पैसा रिटर्न किया है या नहीं, तो आपको उस वक्त तमाम ख़रीदी हुई चीज़ों की इस तरह से एडिशन आनी चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है तो सब्सट्रैक्शन की एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, तो दैट इज़ 63.4 माइनस 31.83। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर अल्टरनेटिव जो दिया हुआ है दैट इज़ 32.79, 95.23, 31.21 एंड 31.57। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि 63.40 ये अल्टरनेटिव जो है यहाँ पर दिया हुआ, तो इसका जवाब हम यहाँ पर देख रहे हैं 63.40 कर दिया हमने इसे यहाँ पर। ठीक है, और इसमें हमें जो है तो सब्सट्रैक्ट करना है 31.83। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 31.57। ठीक है, इस तरह से। तो जैसा हमने एडिशन में किया था उसी तरह से यहाँ भी है ना। जैसे अल्टरनेटिव के नीचे ये यहाँ पर हमने देखा कि जो यहाँ डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के नीचे हमने बराबर से डेसिमल पॉइंट लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 63.4 है तो उसको 40 बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 0 में से 3 सब्सट्रैक्ट नहीं होता है तो बाजू से हमने 1 लिया, यहाँ पर 10 हो गया। ठीक है, 10 माइनस 3 विल बी 7, यहाँ पर 3 है। ठीक है, 3 के लिए हमने यहाँ पर से फिर 1 लिया बाजू से, तो आप देखिए यहाँ पर 13 हो गया। 13 माइनस 8 विल बी 5। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 बचा हुआ है, तो 2 में से 1 सब्सट्रैक्ट किया तो 1 बाकी रहेगा। ठीक है,
अब जाहिर सी बात है यहाँ पर जो है तो 6 है, 6 - 3 विल बी 3 है। सो दिस इज अ करेक्ट आंसर 31.57. So you are looking that this alternative is looking in 4. So this answer is we are supposed to mark a dark circle on alternative number 4 here in this question. This is a right answer here. So we are supposed to make a dark circle on this alternative number 4 like this. तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में हमने आपको जो भी समझाया है उसे आपने अच्छी तरह से समझा है। जो एग्जांपल्स हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शंस के लिए यहाँ पर आपके सामने रखे हैं इसे आपने ज़रूर से समझा होगा। सेशन के बाद आपको इन तमाम सवालात की अपने तौर पर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको जो है तो देखना है आपके वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ आपको जाना है, वहाँ कुछ सवालात दिए हुए हैं, उन सवालात को आपको देखना है और उससे हल करना है और साथ ही दिए हुए गूगल फॉर्म को आपको फिल करना है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।